होगा अभी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन along a straight line for constant acceleration. Is it okay? और देखो अभी जो है ना हम लोग का ग्राफिकल अप्रोच नहीं होगा क्योंकि मैंने ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो जब इसके Yes. बाद का जो क्लास होगा उसमें हम लोग टोटल ग्राफिकल अप्रोच को देखेंगे। अभी सिर्फ क्या होगा, एनालिटिकल अप्रोच होगा। क्या होगा अभी, एनालिटिकल अप्रोच होगा। ठीक है, हम लोग अभी ग्राफ का थोड़ा भी हेल्प नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? यस यस सर। अब देखो सबसे पहले देखो मैंने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है। Acceleration is equal to nothing but the rate of change of velocity. चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा सर चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी रेट माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और हम लोग क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से। ठीक है, अब एक चीज बताओगे कि जब भी कोई चीज डी एसिलरेट करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल डी एसिलरेट करे तो उसमें उसका फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा या इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होगा। सर फाइनल बेटा फाइनल कैसे बड़ा होगा, कोई भी नो चीज सर इनिशियल होगा। इनिशियल बड़ा होगा, इनिशियल क्या होगा, बड़ा होगा और फाइनल क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा। अभी तो ये क्वांटिटी निगेटिव जाएगा यस एंड निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिट्राडेशन। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो मैंने क्या बोला, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। So acceleration can be written as final velocity minus initial velocity upon time. Anyone have any doubt? नो सर। No. Now what we will do? We will arrange this equation. Okay? We will arrange this equation, and by arranging this equation, we will get one equation, and that equation is called the first equation of motion. Is it okay? यस सर। Acceleration is equal to v minus u upon t. Take this t to the left hand side, then it become at. 80 This is equal to plus v minus u. यस Okay. Now v is equal to what, u plus u at. प्लस 80। अगर हम u को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, द साइन विल चेंज एंड दिस इज द इक्वेशन. This equation is called the first equation of motion. Is it okay? यस सर। Now, when this equation will valid, this equation will valid when the acceleration is constant. This equation is valid when acceleration is constant.
Acceleration is constant means what? Sir, speed constant. How? What is a speed? You said that the speed is constant. That means on the every point the speed is same. That is the meaning of the Yes. constant or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Suppose this is the initial point. Here the speed Yes. is v u. Suppose this is the final point. For constant speed here at the final point the speed is also u. So, yes, sir. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. That means u Yes. minus u become 0. Yes, sir. When you say constant speed, that means acceleration will be 0. How can you say that Yes. for constant speed, the speed will be constant? No, speed will never be constant for constant acceleration. If the speed will be constant, then the acceleration will be 0. Tell me. Yes, sir. Yes, sir. So what do you mean by constant acceleration? The velocity uniformly बढ़ेगा sir. Yes, velocity So will velocity uniformly बढ़ेगा. uniformly बढ़ेगा. Is it okay? Yes, sir. Equal intervals of बढ़ेगा या time घटेगा? upon क्या होगा? Uniformly बढ़ेगा या घटेगा? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. This is the first equation. Anyone have any doubt? No, No, sir. No. Okay. Now, tell me what is the average speed is equal to? Average speed is equal to total distance upon total time. Suppose a object is moving with 3 km per hour. Okay. Yes, And sir. this speed is only for 2 hours. Is it okay? And for the next 1 hour, suppose the object is moving with 4 km per hour. Now tell me what is the average speed? Sir, 47.3 7 kilometer per hour upon 3 देखो, hours. average speed is nothing but the 3 plus 4 by 2. Oh. Yes, sir. Is it clear? Is it clear? सर तो इधर Yes. नेक्स्ट में 4 किलोमीटर जाता है तो सर वो भी क्या? 2 न होगा सर 2 आवर. क्या चीज? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ बोला इतना दूर 3 किलोमीटर पर आवर से गया, इतना दूर यस सर. 4 किलोमीटर पर आवर से गया. यस सर. यस सर तो प्लस होगा बाय तो 2. देखो, जैसे सिंपली समझाओ, मानो टाइम गिवन ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ दिया हुआ है ये 3 किलोमीटर आवर गया, ये 4 किलोमीटर आवर गया, यस ठीक है. मान लो ये 2 आवर अगर 3 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर ये 2 आवर 4 किलोमीटर पर आवर से चला, तो मेरा स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड 3 + 4/2. एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस Upon total time. अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 3 × 2 + 4 × 2 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? 2 + 2 होगा. ये क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 2 अपॉन 4 होगा. कट के क्या आया? 3 + 4 अपॉन 2. Yes, sir. अगर मानो कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर चलता है 2 घंटा के लिए और नेक्स्ट 4 किलोमीटर पर आवर चलता है 2 घंटा के लिए, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट v1 × t1 t, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, दोनों में कांस्टेंट है, प्लस
v2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी, नहीं? यस सर, अब ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t होगा, टी कट गया, क्या बचा, v1 प्लस v2 अपॉन 2 होगा। ये कब होगा, यस जब इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड चला जाए तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2। v1 प्लस v2 अगर मानो एक का एज, अगर एक का वेट, मानो अमन का वेट मान लो 40 kg है और मान लो मनीष का जो वेट है 50 kg है, तो दोनों का एवरेज वेट क्या होगा, 40 और 50 सर, 40 अपॉन 50 होगा। नो तो सर 45 होगा, 40 प्लस 50 बाई 2 होगा ना, मतलब 90 बाई बाई 2, 2। दैट मीन्स 45। यस सर, यस सर, हाँ, यस सर, उसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं, यस एवरेज एवरेज स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टी होगा। यस सर, अरे ये टर्म तो क्या डिस्टेंस ही देगा ना, यस सर, हाँ, यस सर, ये यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, इज इट ओके। यस सर, अब देखो u प्लस v अपॉन टी होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा। अब देखो मैंने क्या पूछा, लेकिन एवरेज स्पीड के बारे में पूछा, नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यस सर, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर, ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई किए, यस सर, ठीक, किसी कोई दिक्कत, नो सर। नो नहीं। सर, ये टी कहाँ होगा, सॉरी, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं गलत कर दिया, एक मिनट मैं ध्यान कहीं और चला, एक मिनट। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, होता है कि नहीं होता है। यस सर। तो अगर यहां से हम लोग एवरेज स्पीड बराबर क्या हुआ, एवरेज स्पीड दैट इज v इज इक्वल टू नथिंग बट u प्लस v अपॉन 2 होगा। अब बताओ डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, एस इक्वल क्या हुआ, एवरेज स्पीड u प्लस v, इसको u प्लस v अपॉन 2, ठीक है, इंटू टी होगा, यस सर, क्योंकि स्पीड देखो स्पीड बराबर क्या होता, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहां यस से सर। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड Yes. इंटू टाइम होगा। यस ये सर। क्या है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड डिस्टेंस बराबर एस क्या है मेरा, डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। इज इट ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो पहला इक्वेशन में v बराबर क्या आया था, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन में v बराबर क्या था, u प्लस ए टी था। यस क्या सर। मैं इस v के जगह पे u Yes, प्लस sir. ए टी लिख सकता हूँ, यस सर, तो मेरा डिस्टेंस s Yes, बराबर क्या sir. हो जाएगा, u प्लस v के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी u प्लस ए बाई 2 इंटू टी होगा। किसी कोई Yes, sir. दिक्कत,
हाँ जी, नो सर, नहीं ना। अब ये चीज क्या हो जाएगा, नो सर, u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u होगा प्लस यस सर, 80 अपॉन 2 इंटू टी होगा। Yes, sir. अभी t को मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, और ये 2 से 2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ut प्लस UT plus 80 square हाफ एटी स्क्वायर। plus half AT square. कैसे होगा, सर क्योंकि ऊपर नहीं कुछ मतलब टू हुआ ना, कॉमन लेंगे सर, minus टू 2. कॉमन लेंगे। कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये भी टर्म 2 से डिवाइडेड है और ये भी टर्म 2 से डिवाइडेड है। तो जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या कोई है, वो नोमिनेटर में 2 है नहीं है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रह जाएगा। इज इट क्लियर। Yes, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। S is equal to UT plus half AT square. इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। Second equation of motion. यस, सेकेंड इक्वेशन मोशन। ये भी किसके लिए वैलिड होगा, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए वैलिड होगा, Constant acceleration. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस। किसी कोई दिक्कत, यस सर, हाँ। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, v प्लस यू बाई 2। ठीक है, और वहां से टाइम क्या आ जाए, वहां से अगर हम इस डिस्टेंस कैलकुलेट करने तो क्या करना पड़ेगा, u प्लस बी बाई 2 इंटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। और पहला इक्वेशन में b बराबर क्या है, u प्लस 80 है। इसको क्या करेंगे, यू प्लस इसको क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन बन के चला आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Motion. किसी को कोई डाउट है, No, sir. नो सर, नहीं। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 Plus 80. यस फ्रॉम फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ से 80 क्या होगा, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू होगा। Yes, sir. यहाँ से t क्या होगा, v माइनस यू अपॉन t होगा। v माइनस यू अपॉन ए। अब बताओ सर सेकेंड, ये होगा ना, सॉरी हाँ a होगा, a होगा। अब देखो सेकेंड Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज सर S is इक्वल equal to UT plus half AT टू square. प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ए स्क्वायर। अब इसमें देखो t है, यस सर, Yes, sir. t के जगह पे क्या करो, v माइनस यू बाई ए पुट करो। क्या होगा, यस s इज S is इक्वल टू equal to u इंटू v माइनस यू अपॉन ए upon A प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर। यस Yes, यस sir. किसी कोई डाउट, No, नो sir. नहीं। ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू U means इंटू v sir, U क्या होगा, यू v यू माइनस यू इंटू यू U स्क्वायर बाई ए upon A प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ ए half इंटू बी ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 minus बी यू। 2AU. ए यू कहाँ से Yes, होगा, sir. ए स्क्वायर हो गया, इसको बाहर ले आएंगे, क्या होगा, ऊपर वाला ए नीचे वाले ए को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, Yes, sir. हाफ ए बचेगा। 1/2। अब ये क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, v माइनस यू का होल स्क्वायर, और ये होता क्या Yes. है, v बी स्क्वायर क्या हो गया, a A माइनस बी के होल स्क्वायर बी में, का होल और स्क्वायर। a माइनस बी Yes, के sir. होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर 2 माइनस ab। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक डेरिवेशन का वीडियो डाला, किसने किसने देखा है,
बोलो। YouTube पे एक वीडियो डाला है ना पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कुछ पूछ रहा हूँ। कल से नेटवर्क खराब था सर, कल ही डाले थे आप, कल ने डाले, तो हम इसको थोड़ा देखे उसका। परसों ही डाले हैं। रोशन कुमार, यस सर। क्यों नहीं देखा? सर आज देख लेंगे जाकर। नौटंकी तुम लोग को लग रहा है क्या? मनीष कुमार, यस क्यों मैं तुमको लिंक क्यों भेजा था? देखने के लिए या नहीं देखने के लिए? हाँ, क्या करते रहते हो पूरे दिन? अध्यय यार, आज जाके सब देख लोगे, ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो यहां से क्या करेंगे? यहां से एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 2a। ये ए ऊपर नहीं होगा ना, ये ए नीचे आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है? यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 2a होगा। अब देखो ये ए से ए कट गया, क्या बचा? 2ub माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2ub होगा। यस सर। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। चलो अब ये देखो, ये क्या है? प्लस 2ub, ये क्या? माइनस 2ub, क्या हो माइनस जाएगा? सर कट जाएगा। ये दोनों कट कट जाएंगे, जाएगा। ठीक है? और ये Yes, देखो sir. ये क्या है? माइनस 2u² प्लस u² क्या हो जाएगा? सर u²। माइनस u² होगा। माइनस u²। हाँ Yes. क्या होगा? माइनस b² माइनस u² अपॉन 2a। 2a। अब इस ये क्या है? s के बराबर है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. 2as। b² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसको और क्या लिख सकते हैं? b² इज इक्वल टू u² प्लस Plus 2as। इज इट क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट? Yes. ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्ट्रेट लाइन। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या था मेरा? दूसरा दूसरा। इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या था? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी कोई डाउट? नो सर। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर। इसके लिए जब v1 भी टाइम t के लिए चला हो और v2 भी क्या हो? टाइम t के लिए चला हो, तब। चलिए चला। इज इट ओके? यस सर। ओके। Yes. किसी को भी कोई डाउट है? देखते हैं। किसी को कोई डाउट? देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यस सर। इक्वेशन में v बराबर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। यस सर भैया u इनिशियल। u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी। a क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड होंगे जब क्या होंगे? एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब हम लोग ये तीनों इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. देखो ये t क्या है? t इज नथिंग बट टाइम। s क्या है? डिस्टेंस। s क्या है? डिस्टेंस। x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल माइनस x इनिशियल मतलब क्या?
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है आज के इस तीनों इक्वेशन में तो पूछ सकते हो। हाँ सर। डाउट नहीं है? इसको आपने कॉपी पे लिख लिया? Shall I erase it? सर इसको हम प्रूव कर दिए थे बहुत दिन पहले। यस सर।